जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada, Gurudev, 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 Jai Srila Gurudev. हरि नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी शैल प्रबंध महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। Accept my Dandavat Pranam. All glories to Srila Prabhupada, and all glories to all that have continued this program of Nityam Bhagavata Sevaya. Very rare opportunities, at least in this part of the world, where without fail we are all congregating. So today, text 20, conversation between Manu and Kardama is going on. Text 20 today. Naidadvatadidhi sampadam tavipsitam yanmayaya nastanuse bhuta suksham anugrahashyatva api yarimayaya lasatulya sa bhagavan vilakshitah. Naitadvatadidhi sampadam tavipsitam yanmayaya nastanuse bhuta sukshamam anugrahaya shatvapi yarimayaya lasatulya sa bhagavan vilakshitah. Naitadvatadidhi sampadam tavipsitam yanmayaya nastanuse bhuta sukshamam anugrahaya shwatapi yarimayaya lasatulya sa bhagavan vilakshitah. Synonym: na, not, etat, this, bata, indeed, adisha, O Lord, padam, material world, tava, your, ipsitam, desire, yat, which, mayaya, by your external energy, naha, for us, tanuse, your manifest, bhuta sukshamam, the elements, gross and subtle, anugrahaya, for bestowing mercy, astu, let it be, api, also, yarhi, when, mayaya, through your causeless mercy, lasat, splendid, tulasya, with the wreath of the tulsi leaves, Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, vilakshitah, as perceived. Translation purport by His Divine Grace, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. My dear Lord, although it is not your desire, you manifest this creation of gross and subtle elements just for our sensual satisfaction. Let your causeless mercy be upon us, for you have appeared before us in your eternal form, absorbed with splendid wrath,
what I said, adorned with splendid wreath and the tulsi leaf. Purport or ecstasy of Srila Prabhupada. I'll speak slowly so that you all can understand. It is clearly stated here that the material world is not created by the personal will of the Supreme Lord. I think we'll do the invocation, then I can read about it. Om Jnana Timirandhasya Jnananjan Salakaya Chakmurtamaya Nam Tasmai Sri Guruve Namah Sri Chaitanya Mano Vaishnavasthapitamena Bhutale Swayam Rupakatamayam Dadati Supatantikam Pandeyam Sri Guru Shadapadakamalam Sri Guru Vaishnavamcha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vidantam Sajivam Sadhuetam Savadutam Parijan Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishakan Vidamcha He Krishna Karuna Sindhu Deen Bandhu Jagatpati Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute तप्ति कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्य पादाय नेताय कृपावर्ताने गौरकथा दामोदाय नगरग्राम तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्रील प्रभुपाद। So, Prabhupada purport is there. It is clearly stated here that the material world is not created by the personal will of the Supreme Lord. So many times I think Krishna Prabhu is not here with us. He had asked me this the question many times. Why Krishna has created this material world? If it is so magnanimous, if it is so satvatam patihi, if it is so kind, why has he created the material world? So here it's saying it is not the will of the Lord. It is definitely not the will of the Lord. Then what it is? It is created by his external energy because the living entities want to enjoy it. Now, Krishna was baffled. Oh my God, so many are outlaws, what I'll do? The external Maya said, don't worry sir, I'm your servant, I'll take care of it. And see, taking care of in such a way, kicking us in our ass, on our head, on your back, and you should say, Maya is beautiful, Maya is very beautiful. Bahurupaya bhati Maya, Bahurupaya. The Maya is coming in, so many allurement is giving, and we are enjoying. Ha, what a nice life, what a nice air condition, LED bulb, automatic car, wow. Nowadays, you don't have to go prasadam. Talabat, hello, bring me one dosa, one masala vada. Now within 15 minutes. You don't do anything, man. What a life. What a life. And you don't know what you are eating only sin. You may be enjoying, right? The Manchurian and I don't know the name, so many things. This and that. And you may be very happy. Oh, God has a grace over me that I can call, not on Talabat, then Ujum? No, not Jum. Zomato or something like that, and how happy you are feeling. We don't know, with this facility, Maya saying, beta, you take more sin. जब इतना जहर ले लिया तो थोड़ा पूरा बोतल पी जाना, क्या प्रॉब्लम है? इतने से भी मरेगा, पूरी बोतल से मरेगा. पी लो. Why? And we think we're enjoying it. I tell you, back in 1982, we had a Sugos. There was a boy from Calcutta, Sugos. So he will drink. He will drink in such a state that he will not able to get up. And he will tell us, I will drop you home. I know where you are home. I will drop your home. We have to lift him up. He said, don't worry. I know where is your home. I will drop you and then go home. So this is our condition. It is created by Maya to keep us in prison. And believe me or not, in prison, you are not free. But here,
God said, no, no, no. Okay, you put them in prison, but give them a little free will. After they are my part and parcel. Otherwise, they will die of suffocation. So they have given a little free will. And this free will, think that we have crossed over Maya. Maya is nothing in front of us. Prabhupada says, this material world is not created for those who do not want to enjoy sense gratification. But you will say, they are also here, no? They are satisfying the senses of Krishna, and in turn our senses are being gratified. Our senses are also being gratified because we are trying to gratify the senses of Krishna. They are not doing anything of our own. Somebody asked Srila Prabhupada, see, you all don't work, but you have lavish prasadam food, so many varieties of food. What is this? He said, Krishna is supplying. How Krishna is supplying? He said, Krishna would have supplied us more, but you are not giving us donation. If you give me donation, we'll have more prasadam, more variety of prasadam. Because you are a conjuice, miser. So, those who are working for Krishna, they enjoy. I'll give another example. Let us say a Vaishnava comes over here. In your home, you will be making rice, dal, papad, or maybe one vegetable. Isn't it? That's it. That's your quota. I'm happy, Prabhu. Dal, rice, one chapati, maybe something. Or if Krishna Chandra Prabhu is there, he'll make some vada sometime. That's it. But when any Vaishnava comes, and that Vaishnava is not working, but he is working for Krishna, and see how many varieties of prasadam is served to them. Okay? So, I'll read that again. This material world is not created for those who do not want to enjoy sense gratification. Now they say, Prabhu, it's not sense gratification they are eating. No. They are honoring the prasadam. They are taking the mercy of the Lord. They will never say, put a little salt over here. No, they will not ask anything, right? Whatever is there, they will simply say, wow, by God, Krishna's mercy, very nice, very beautiful, very delicious. Right? Have you ever seen somebody, oh, bring salt, bring salt? No, they don't want. So, since they don't enjoy the sense gratification, this material world is Vaikuntha for them. Right? Furthermore, Prabhupada says, who constantly remain in transcendental loving service and who are eternally Krishna conscious. Actually, everybody is conscious. Everybody is conscious. Body conscious, family conscious, job conscious, nation conscious, society conscious, car conscious, everybody is conscious. Chappal conscious, pen conscious, glass conscious, everybody is conscious. But there are very few those who are Krishna conscious. And what means Krishna conscious? I only work what Krishna dictates me. That's it. Nothing more than that. Then you say, Prabhu, but then you are working. No, if you are working, then you are away from. No. The fruits of that working, if you are given to Krishna, that's more than enough. Krishna is just satisfied. Then how to do? Well, you have to give profuse donation, no? We are not asking you starve yourself. You deprive your family. No, never. That's your first duty and responsibility. But whatever little extra, donate it. The fruits. And then whatever little you donate, all that you have, it becomes purified. Huh? So it should be loving service. And now, if we don't do it, you see, today we are sitting here in Krishna consciousness. Somebody has invested the money. Whether it's Prabhupada or his disciple, things. Somebody has done something. But if nobody had done anything, how would we develop the Krishna consciousness? Why should I pay? Why should I do it? So many people have opened their houses. Please come. We had a Radharaman Prabhu in Bahrain. His house, they had lost the main gate key. They lost it. And they say, क्या जरूरत है ना प्रभु जी हर समय तो लोग आते जाते रहते हैं दरवाजे लगा क्या फायदा. You see? So these are the ways. Somebody has done something. It's not that we got it free all of a sudden. No. So similarly, in order to purify our existence, we have to do. Not starving the family and really things like that, but a little extra one must donate. Then only we can become fully Krishna conscious.
For them, the spiritual world is eternally existing and they enjoy there. As I'm saying, this Kali Yuga that you are here in Kali Yuga, so long you are in front of Krishna, is not a Kali Yuga at all. You are in Vaikuntha, no kunthas at all, no problems at all. And that's what is required in the human life. This life is meant to enjoy. Definitely this life is meant to enjoy, provided if you know how to enjoy. Prabhupada says, elsewhere, in the Srimad Bhagavatam, it is stated that for those who have taken shelter of the lotus feet of Supreme Personality of Godhead, the material world is useless because this material world is full of danger at every step. You know, every one of us are afraid of corona. The virus will come. Today, Prabhu had written a very nice thing, I had never ever crossed it. He says, we don't want to become the prasadam for the coronaviruses. It was very good sense. Now, every one of us are afraid. I do injection, I do this, everybody does this, very nice. All of a sudden, few days before in Rajasthan, the Bijli came, electricity came, 14 people died. Without corona. Then in Prayagraj, again that it was, what do you call it? Not windfall, this electricity comes from the sky. Lightning, 60 people died. Don't blame corona all alone. Then in German, there is a flood came, 60 people in German, I don't know the name of the village, the city, drowned, and still they are trying to find out how many more dead bodies they can find. And look at Dwarkadish temple. There also lightning. But lightning fell on the flag of the Dwarkadish temple. That's it. Only flag was destroyed. Rest everything intact. Krishna said, no, don't worry, I will save you. I'll take it on my own. So why I'm saying this? That we may try ourselves to save. Of course, this is a prime duty, no doubt about it. But more than that, you have to pray Krishna. Sitaram, Sitaram, Sitaram kahiye. Jehi vidhi rakhe Ram, sehi vidhi rahiye. So we have to try to tolerate. If we don't try to tolerate, we'll be in anxiety, great anxiety. Furthermore, because the material world is full of danger at every step. Padam padam yad vipatam. Agavada na tesham. Vipatam for the non-devotees or materialistic people or atheists, but padam padam yad vipatam na tesham. Not for those who are fully Krishna conscious. What is the vipata for them? Rather, they will be happy to go back home, back to the Godhead. Furthermore, it says, it is not meant for the devotees, but for living entities who wants to lord it over the material energy at their own risk. Krishna is so kind that he allows the sense enjoyment of the living entities, a separate world created by him, to enjoy as they like. And yet, at the same time, he appears in his personal form. Krishna always in personal form. At the moment in the age of Kali, Krishna is known as Triyugi. In Triyuga, Satya, Treta, Dwapar, you can visually see it, practically see it. But in Kali Yuga, Chadam Avatar of Lord Chaitanya, or otherwise he is in Sabd Brahma, or Garantha Avatar. Srimad Bhagavatam is the Garantha Avatar of Krishna. Sabda of Krishna is the Bhagavad Gita. And Hare Krishna Mahamantra is a Mahamantra Avatar. It is there. Those who want to see him, they can see, they can feel, and they can be guided by him. But only if they want. Otherwise, again we say, Padam, Padam, Yad Vipatam. Problem at every step. The Lord unwillingly creates this material world, but he descends in his personal form, or send his reliable sons or a servant of reliable authority
like Vyasadeva to give instruction. Yada hi dharmasya galani bhavati bharata avithyanam adharmasya tadatmanam srijamyam परित्रणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि योगी योगी। तो लोग होते हैं विनाशाय तो दुष्कृताम। यार भगवान उनको मारते क्यों है ना? भगवान ने कंस को क्यों मारा, हिरण्यकशिपु को क्यों मारा? नहीं मारना चाहिए था। अरे वो कह रहे थे कि तुम ज्यादा पाप कर रहे हो, मैं तुम्हें पापों से छुटकारा दे रहा हूं भाई। अगर कोई डॉक्टर कहे कि तुम्हें डायबिटीज है, चीनी नहीं लेनी है, शुगर नहीं लेना है, तो वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारे फायदे की बात कर रहा है। तो ये जो है और पाप कर रहे थे, तो भगवान ने इनके पापों का उन्मूलन किया कि बस ज़्यादा परेशान रहोगे, नरक में जाओगे, मैं नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हें उद्धार करके तुम्हें अपने पास बुला लेता हूं। तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, उनका भी उद्धार है। रत्नवली बलि की बेटी, रत्नमाला बलि की बेटी, जब उसने बटुक भगवान को देखा, उसे प्यार उमड़ आया, आहा काश मेरा बेटा होता, काश मेरा बेटा होता। लेकिन जैसे उन्होंने बलि को छला, बलि छल्यो हरि बामनम, तो उसको गुस्सा आया, अगर मेरा बेटा होता तो वो दूध पिला के, जहर पिला के मार दूंगा इसको मैं। वही रत्नमाला पूतना बनी और भगवान को पिलाया जहर और मुक्ति हुई गोलोक धाम में, मां बना दिया। ये कैसे भगवान है भाई? है? हमको तो आप कुछ कहते हो, मैं आज तो 2-3 महीने से आपसे बात नहीं करूंगा, आप जहर पिलाने की बात करो। 2-3 में बात नहीं करूंगा तो अरे छोड़ो ये प्रभु, अरे बेकार है बिल्कुल, ये काम काज में नहीं है। और उसने जहर पिलाया और उसको इतना बड़ा होता। तो इतने करुणा सागर है हमारे भगवान श्री कृष्ण, हम समझते ही नहीं। आगे he himself also instruct in his speech of Bhagavad Gita. क्या बोलते हैं? मन मना भव मत भक्तो मध्यादि माम नमस्करो मत चित्त मत गता प्राणा बोधयंत परस्परम। और बोलते हैं अभ्यास योग युक्तेना चेतसा अन्यगामिना और पत्रम पुष्पम फलम तोयम और पितामह से जगता माता धाता पितामह, हजारों। और क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य और सततम कितनी बार बोला, दूरेण दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। अरे धनंजय, अपनी बुद्धि योग को जो एक रखो, भक्ति योग शुरू करो। क्या बुद्धि 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 बोलता है ये हो जाएगा हो जाएगा, ये बुद्धि है क्या? ये परवर्टेड बुद्धि है तुम्हारी। छोड़ो सबको, दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। अरे छोड़ो ज्ञान को, क्या करो? भक्ति करो। भक्ति कैसे करें? माम उपाश्रिता, मेरी आश्रय आ जाओ ना। तुम्हें कुछ थोड़ी करना है, तुम मेरे साथ रहो तो मजे करोगे। जब तुम्हारे घर में कोई नौकर है तो क्या कभी उसको चिंता होगी कि मैं राशन कहां से लाऊंगा, या मैं घी खत्म हो गया मैं क्या करूंगा? उसको कोई फिक्र है? वो तो ऑर्डर करेगा बोल को, साहब घी खत्म हो गया। अब साहब बेचारे भाग भाग जाएंगे, अरे भाई नौकर ने बोला घी लेके आओ। तो जब भगवान के शरण में आ जाएंगे, बोले प्रभु भूख लगी है, भगवान ने अरे मैं खाने का प्रबंध करता हूँ, डोंट वरी, मैं खाने का प्रबंध करता हूँ। तो शरण में तो आओ। हम शरण में तो जाते नहीं है, दूर से बोलते हैं मुझे ये देना भगवान। हाँ, हमारे गढ़वाल में कहते हैं जागे रहे, मतलब इंतजार कर। जागे रहे। आज हमने उनको गढ़वाली भी सिखा दिया आपको। ओके, इसमें भगवद गीता, दिस प्रोपेगेंडा वर्क्स गोज ऑन साइड बाय साइड with the creation to convince the misguided living entities who are nodding in the material world to come back to him and surrender to him. Therefore, the last instruction of Bhagavad Gita is this: give up all your manufactured engagement in the material world and yet just surrender unto me. I shall protect you from all sinful reaction. So, Kardama is saying, my dear Lord, you have appeared. It's your desire. You have come in front of us. You have done a favor to us. You have satisfied our senses, rather purified our senses because of your causeless mercy. He is appearing. Every another appearing. Even
Now, when we are talking in the name of Krishna, he is in person. Is another thing that we have not seen him. We can't see him. Naham prakasa sarvashaha moh maya samavrita मूढ़ोयम ना विजानाति। अब ये देख लो, अगर आपको भगवान दिख नहीं रहे हैं तो आप मूढ़ हैं, मैं मूढ़ हूं। भगवान कहते हैं मूढ़ोयम ना विजानाति, जो मूढ़ है मुझे नहीं समझते। लेकिन प्रभुपाद की अनुकंपा से, प्रभुपाद की कृपा से इतना हमें मालूम चल गया कि हमारे मंदिर में भगवान है। इतना तो सबको मालूम हो गया, भगवान मंदिर में भगवान है। मंदिर के बाहर कोई भगवान नहीं, वहां तो सड़कें हैं, राउंड अबाउट्स हैं, ट्रैफिक लाइट है, वहां कहां भगवान है? गाड़ियों का शोर है, सब कुछ है। हाँ, भगवान में, प्रभुपाद के अनुकंपा से भगवान में मंदिर हैं, भगवान में सेवा करूंगा, बाकी बाहर थोड़ी सेवा करूंगा। बाहर में थोड़ी किसी को बोलेंगे कि हरे कृष्ण, वो तो सिर्फ घर में है, अपने बच्चों और बीवी के साथ हरे कृष्णा बात, और बाहर से हेलो हाउ आर यू, हाउ थिंग्स, व्हाट्सअप नहीं बोलेंगे हरे कृष्ण। हमारा मंदू मेरे पास आया, विनोद जी व्हाट इज दिस हरे कृष्णा? ऐसे हरे कृष्ण अस्सलाम वालेकुम, हाँ लाइक दिस, ऐसे या लाइक दिस। सो ही सेड मैडम हाय कृष्ण, ऐसे ओके दैट्स गुड, इतना भी बहुत होते हैं। तो कहते योर कॉज अस मर्सी। आई डोंट नो वेदर रियली, डोंट टेक एनी जोक, वी आर वेरी लकी दैट वी नो हु कृष्णा इज। Extremely lucky, we are very very fortunate that we know who Krishna is. But the same thing, वो कहते हैं ना भगवान, यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यो मा पश्यति सर्वत्र, जो मुझे हर जगह देखेगा, सर्वमयि पश्यति, और हर चीजें मुझ में देखेगा, हर चीजों में मुझे देखेगा, तस्याम न प्रणश्यामि, वो मेरे लिए दूर नहीं है और मैं इसके लिए दूर नहीं हूं। तो प्रभुपाद की अनुकंपा है। जब आप गाड़ी में जाएं, आप निकलने वाले हो, बत्ती पीली लाल हो जाए, कूदिए मत, बोले हाँ अच्छा मौका मिला, एक नाम तो चांद के लेता हूँ मैं, अब फिर कीजिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कभी कोई ट्रैफिक जाम हो गया, बोले आज मजा आ गया, अब तो आराम से मैं जब लगाता हूँ, कथा लगाता हूँ, 2 मिनट के मैं गुरु महाराज की कथा तो सुन लो, ऐसा तो कर सकते हैं। तो हर जगह ये तो कृष्णा कॉन्शियस है, उसके मतलब थोड़ी है कि हमारे सींग आ जाएंगे, हमारी आंखें बड़ी हो जाएंगी, हम ज्ञान से बिल्कुल श्लोक हमारे बदन से नीचे गिरेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। तो सब यही तो है भाई, यही तो करना है, भगवान को तो पहचानना है? बीबी से झगड़ा हो गया तो नहीं, भगवान का आज क्या संदेश था भाई? मैं कह रहा हूं ना कि आपको पहले बताया मैंने शायद कि हमारे हिंदुस्तान की हर औरतें पति को परमेश्वर मानती हैं। कितना गलत है कि आप पति के भी परमेश्वर हो सकता है? क्यों मानना है जब है ही नहीं? अब मेरे भाई ने क्या किया, परमेश्वर को पति माना, अपने पति को परमेश्वर नहीं माना, हो ही नहीं सकता है। अरे वो क्या बोलते हैं, वो दाल वट्टा खाने वाला कैसे परमेश्वर हो गया भाई? वो कैसे परमेश्वर? वो परमेश्वर नहीं हो सकता, मानने के क्या फायदा? लेकिन परमेश्वर को पति मानो तो बात बनती है भाई। हाँ, परमेश्वर को पति मानो, हाँ भाई ये मेरे पति, और पति का मतलब प्रोटेक्टर, और भगवान है शाश्वताम पति ही। इसके बावजूद हम भगवान को पति नहीं मानते, भगवान को पति नहीं मानते। नहीं, भगवान को, भगवान है, भगवान थोड़ी पति हो सकते। हाँ, मेरा पति तो परमेश्वर है। एक बार एक बाई थी, तो उसका पति उसे बहुत मारता था। तो एक दिन करवा चौथ का व्रत आया, वो व्रत लेने लगी तो किसने कहा, अरे बेवकूफ, जो पति तुझे हर रोज मारता है, हर हफ्ते मारता है, तो उसके नाम का व्रत लेके जिंदा रहे। बोला हाँ इसलिए ना कि साला दूसरा वाला न मालूम कैसे मिले, ये बढ़िया है। He said, known devil is better than unknown devil. तो जब भगवान को हमने पहचान ही लिया है, तब भगवान की भक्ति करो ना। क्या
लेकिन समझने की बात है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ भैया, अपने पति को परमेश्वर मानो, अगर तुम नहीं मानोगे, मेरी बीवी मुझे नहीं मानेगी तो मुश्किल हो जाएगी, तो तुम लोग मान लो। मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। तो लॉर्ड इज सो वेरी मर्सीफुल, ही कम्स एवरी। तो भगवान को, कृष्ण भगवान को परमेश्वर मानती हूँ। तो भगवान न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, इसलिए अपनी जुबान में कंट्रोल रखो। अपने ध्यायते विषयान पुंसा, क्या देखो, हर जगह भगवान देखो। आपको बड़ी हैरानगी होगी, मेरी उम्र बहुत बूढ़ी हो चली है, मुझे आज तक ये नहीं मालूम है कि मेरी बीवी कौन सी दवाई लेती है और मैं कौन सी दवाई लेता हूं। मुझे भी नहीं पता, बिल्कुल नहीं मालूम। हाँ, ये दे रखा है भाई, ये खानी है, ये खानी है, एक सुबह खानी है, शाम को बात खत्म हो गई। मिसेज के बारे में नहीं मालूम। उसके बाद एक दिन मुझे किसी ने पूछ लिया, मन का अच्छा, तो अब मैंने अपने फोन पे लिख दिया कि हम क्या क्या दवाई खाते हैं। पूरे फोन पे लिखा हुआ कि मिसेज क्या खाते हैं, मैं क्या खाता हूँ। बोले क्या खाते हैं, एक मिनट। परसों मैं गया था वहाँ कि आप क्या खाते हैं, कितनी गोली खाते हैं। मैंने कहा एक मिनट, मैं अपना फ़ोन गया, मैं डॉक्टर ये मैं खाता हूँ। अच्छा तो ठीक है। तो जब इतना भी ना मालूम हो, मैं ये करूँ आप मेरी तरह बनो, लेकिन दुनियादारी से जितना दूर हो सके, जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए। और दूर आप तब हो सकते हैं जब आप कृष्ण के नजदीक जाएंगे। आप कृष्ण दूर नहीं, तुम दुनियादारी से दूर नहीं हो सकते हो जब तक तुम्हें कोई और पकड़ने को नहीं मिला। प्रपात एग्जाम्पल देते हैं, वो एक क्या बोलते बेटे उसको, एक जीव होता है, वो पहले पीछे के पैर को पत्ती में चिपका करके आगे को जाता है, फिर मुंह चिपका करके फिर छोड़ के फिर आगे जाता है। नॉट अर्थवर्म, समथिंग ग्रीन ग्रीन इन द लीफ इट कम्स। तो इसी का कैटरपिलर वो छोड़ता है, एक को दबाएगा, दूसरे छोड़, तब आगे जाएगा। तो हम लोग भी कुछ नहीं छोड़ सकते जब आगे कुछ नहीं मिलेगा। जब तक हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होती है, हम दुनियादारी को नहीं छोड़ सकते हैं। तुम कितना ही सोच क्यों न लो, कितना ही सोच लो, नहीं छूटेगा। क्योंकि आपको कोई सहारा तो चाहिए, बिना सहारे के आप चीजें छोड़ नहीं सकते। इसलिए अब देखिए, कभी कभी होता है ना, बच्चे माँ बाप तो ऊपर से बोले अच्छा छलांग मारो, बच्चा छलांग मार देता है। वो 6 फीट हो, 7 फीट हो, 8 फीट छलांग मार देता है। उसको मालूम है कि मेरा पापा पकड़ेगा मेरे को, गिरने नहीं देगा, बेता से। लेकिन अगर पापा वो नहीं मार, तब नहीं छलांग मारते, तब नीचे उतरते, तब नहीं छलांग मारते, मतलब गिरी है तो। लेकिन छोटे बच्चे छलांग मारो, उसको मालूम है पापा पकड़ेगा। तो इसी प्रकार हमारा इतना ध्यान कि मेरा ख्याल भगवान करेगा, जितना दृढ़ विश्वास हो तो हम भक्ति में बहुत आगे चल सकते हैं। कल एक बहुत शानदार मेरे को कृष्ण ने प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि विदुर महाराज इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े भक्त थे, उन्होंने धृतराष्ट्र को भक्ति क्यों नहीं दी? उन्होंने धृतराष्ट्र को भक्ति क्यों नहीं दी? इतने बड़े विद्वान, भगवान से मिले, उद्धव से मिले, मैत्रेय से मिले, इसके बावजूद भी उन्होंने उसको भक्ति क्यों नहीं दी? अपने भाई को प्यार करते थे। तो मैंने कहा माता जी, भक्ति देने की चीज नहीं है, भक्ति तो करने की चीज है, भक्ति तो उपजने की चीज है। हमारे गुरु ने हमें कहा, उन्होंने हमें भक्ति थोड़ी दी, भक्ति का प्रोसेस दिया, वो तो हमको डेवलप करना है ना। डेवलप तो हमें करना है। ये नहीं कि उठा करके एक रसगुल्ला हो, ये भक्ति का रसगुल्ला है, खाओ और आप भक्त बन गए, ऐसा तो नहीं है। भक्ति तो उपजनी पड़ती है, भक्ति तो कार्य करना पड़ता है। देह को मत जलाइए, अपने दिमाग की बत्ती खुली रखिए। दिमाग की बत्ती खुली होगी तो आदमी मजे में रहेगा। तो इस प्रकार आज हमको पता चला कि ये जो भौतिक संसार है भगवान ने नहीं बनाया है, ये तो माया देवी ने बनाया है और भगवान में सहायता की है। इसलिए और फिर भी कहा है, चलो अगर ये यहाँ जेल में भी हैं तो थोड़ी सी फ्री विल तो उनको देनी चाहिए। नहीं तो बेचारे बेहोश होकर मर जाएंगे, अनकॉन्शियस रहेंगे। तो थोड़ी सी फ्री विल, और फिर इस फ्री विल में हम देखो क्या मजे करते हैं। आपको मालूम है, कभी आप हॉस्पिटल जाइए, किसी की टांग लटकी हो, पूछो हाउ आर यू, ओह फाइन थैंक यू फॉर। अरे टांग तो लटकी यार, क्या फाइन थैंक यू तुम यार, क्यों झूठ बोल रहे हो? बिस्तर में लेटे लेटे झूठ बोलो यार, क्या किया जाए। और तो बोलते हैं अरे बेटे हजारों साल जियो, वाह वाह वाह। जो
बेनिडिक्शन दे रहा है वो भी 1000 साल नहीं जिएगा, वो नहीं जीना 1000 साल वाला, बेटा 1000 साल जियो। और हम बोलते हैं बड़े खुश, अरे सिद्ध बाबा ने हमको जो है लंबी उम्र की वो किया। अरे भाई उम्र लंबी होगी, उसने नहीं बोला तुम्हारा दांत इंटैक्ट रहेंगे, ये नहीं बोला कान इंटैक्ट रहेंगे, आंख इंटैक्ट रहेंगी। आजकल हमारा घर ऊपर नीचे है, तो कभी कभी मिसेज हमको कुछ बोलती है, वो बोलता देख तू बड़ मत कर, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, नीचे आके बात कर तो बात कर, वरना कुछ मत बोल, कुछ सुनाई नहीं देता। तो कान के देवता गए, आंख के देवता गए, नाक के देवता गए, दांत के देवता गए, अब रह क्या गया? लंबी उम्र। जैसे बेचारा रोनाल्ड रेगन, लंबी उम्र थी, 8 साल तक वेजिटेबल की तरह बिस्तर में लेटा रहा। कितने साल? रोनाल्ड रेगन, द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 8 साल तक बिस्तर में वेजिटेबल तरह लेटा रहा। तो क्या हम जीना चाहेंगे? हम क्या दीर्घजीवी बनना चाहेंगे? नहीं, हमें तो दिव्यजीवी बनना है। कृष्ण पदीय पंकजरांतम, हे भगवान कृष्ण अभी है, अभी ले जाओ, बाद में क्या मालूम क्या हमारे साथ हो जाए। लेकिन ऐसा कोई नहीं कहा। अगर तुमने कहा कोई आ गया तो वो कहानी है ना, ये कि बुढ़िया थी, बेचारे घर में कोई नहीं था, तो वो जंगल में लकड़ी काटती थी और लकड़ी काट के अपना जीवन प्रवाह करती थी, और हमेशा बोलती थी ये यमराज, यमराज तुम कहाँ हो, मेरे को लेने क्यों नहीं आते तुम, आ जाओ मेरे को लेने, मुझे शरीर में नहीं रहना है। एक दिन बेचारी जंगल में गई, गुस्से में ढेर सारी लकड़ियां काटी, जब गट्ठे बनाई उठा नहीं पाई। अरे उसने बोला ये यमराज क्यों नहीं आता तुम मुझे मारने के लिए? यमराज आ गए, बोला माता जी मैं आ गया हूं। अब बुढ़िया ने यमराज को देखा, डर गई, बोला मेरी कोई सेवा? बोला बेटा अब तुम आ ही गए हो ना, ये गठरी मेरे सिर में रख दो भैया, बस, इससे आगे कुछ नहीं। तो हम जो कह रहे हैं ना कि भगवान अभी ले जाए, अरे भाई अगर आ गया तो वो चंदूलाल की कहानी आपको याद है। तो भगवान हमेशा हमारे साथ में है, ये दृढ़ विश्वास, इतना विश्वास होना चाहिए जैसे हमारे चेहरे पे आंखें हैं, हमारे चेहरे पे नाक है, हमारे चेहरे मुंह, इतना विश्वास है हमारे नाक है, आंख है, ठीक इसी प्रकार भगवान मेरे साथ हैं, इतना अगर विश्वास हो जाए तो भक्ति में आनंद आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आइए, अरे वाह बहुत टाइम हो गया, इसके साथ ही मैं वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझको ये मौका देने के लिए कि मैं भगवान के बारे में कुछ शब्द बोल सकूं और आप लोगों को कुछ सुना सकूं। हरे कृष्णा।